जी सर, स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही वेबिनार श्रृंखला की 174वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम हमारी इस श्रृंखला को शुरू करने के पहले हर एपिसोड में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज हमारे साथ मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर उषा साहनी सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करेंगे। इस वेबिनार श्रृंखला की आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और कम्युनिकेशन टुडे के एडिटोरियल बोर्ड से भी आप जुड़ी हुई हैं। साहित्य विभिन्न विधाओं में पिछले अनेक वर्षों से आप निरंतर लिखती रही हैं। आपके 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और अगला काव्य संग्रह शीघ्र प्रकाश्य है। शेक्सपियर आपका प्रिय साहित्यकार रहा है, जिस पर आपने उनके नाटकों पर आपने अपनी पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त आपका अंग्रेजी में एक कथा संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार से आप लिख रही हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स को भी आप ट्रेनिंग देती रही हैं। मैं प्रोफेसर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ साथ हमारे उस आयोजन की पृष्ठभूमि के बारे में भी आज के हमारे प्रतिभागियों के साथ संवाद करें। प्रोफेसर उषा साहनी। धन्यवाद सर। माँ शारदे के श्री चरणों में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना. Good evening and a very warm welcome to one and all present on this platform. Today we are running 174th webinar of this webinar series, which actually started under the able guidance of Professor Sanjeev Bhanawat, which was by then under the umbrella of Communication Today. Specifically, after completing 100 webinars under the umbrella of Communication Today, the joint venture started with Bharati Vidyapeeth, and that too we are about to complete 74th. This is the 74th webinar. So that means within 26 more webinars, we'll be able to do 2 centuries together. Also, Professor Bhanawat, when he took this decision on 2nd of October 2020 to start with this webinar series, he made a point that there is no way any media topic going to be untouched by his special efforts by bringing all the eminent speakers from various fraternities, inclusive of having a very, very vibrant dimension on media education. The journal which we are talking here about, Communication Today, the bilingual, which has covered all the topics covering the media education's dimensions. And specifically, this webinar series is taking care of all the contemporary topic. So whatever new comes, Professor Bhanawat is not at all behind to take an initiative to talk about that very topic so that all the academicians, practitioners, scholars, and students can get the clear understanding of the experts' experiences through this platform. Also, Professor Bhanawat has worked really hard to maintain a YouTube channel wherein all the episodes are being recorded, and those people who are not available on the exact timing that we are running this webinar, they can definitely subscribe this channel and get those specific topics and increase and enlighten themselves from this channel
of Professor Bhanawat under the name of Communication Today only, and get the expertise, experiences whenever they want. So that's again one more feather attached there in his cap. Of course, Professor Bhanawat has called upon here on this platform much more than 450 speakers, national and international acclaimed people. Few professors, few academicians and practitioners were being invited more than once, because we could actually understand that their expertise were definitely worth delivering to the participants who were there on this platform. Today's topic that Professor Bhanawat has selected is Parde Par Azadi, Cinema ke Zariye Itihas Se Rubaru. A very, very important fraternity, cinema, through which a lot of people, those who are not touched with the present scenario, can definitely get a lot of information from this particular fraternity. And for that purpose, Professor Bhanawat has invited Dr. Manish Jaisal, Head, Department of Journalism and Mass Communication, ITM University, Gwalior. The entire introduction will be given by Professor Bhanawat, but I welcome him, and I welcome all the participants also, those who are here connected with us on this virtual platform. To take over the further proceedings, I would like to hand over the virtual platform once again to Professor Bhanawat and thank him a lot to make me a part of this webinar series. Thank you, sir. चलिए, बहुत बहुत आभार प्रोफेसर उषा आपके इस विस्तृत पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए। और निश्चय है ये बहुत ही एक थ्रिल और रोमांच की अनुभूति है कि हमारी वेबिनार्स की ये यात्रा दोहरे शतक की ओर बढ़ रही है। हमारी अगली वेबिनार 175वीं 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस उस अवसर पर आयोजित की जा रही है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम समसामयिक विषयों के साथ साथ मीडिया के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण दिन हैं उन पर भी कहीं चर्चा करें और उस दिवस के सेलिब्रेशन के साथ साथ नई पीढ़ी को भी बताएं कि किस तरह से हमारे जो अतीत है वो किस तरह का था और हम आगे के लिए क्या संभावनाएं तलाश रहे हैं। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज का जो विषय हमने चयन किया है, जो अगस्त का महीना भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व रखता है। इसी दृष्टि से हम 2 दिन बाद भारत की स्वाधीनता का जो पर्व है उसको मनाने जा रहे हैं। तो मैं लगा कि क्यों नहीं स्वाधीनता दिवस की जो यात्रा हमारी है, स्वाधीनता संघर्ष जो हमारा है, उसके बारे में फिल्मों ने किस तरह से जानकारी दी है, हम भाई डॉक्टर मनीष जैसल को सुनेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं भारतीय विद्यापीठ, जो दिल्ली का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है और लगभग 24-25 शिक्षकों, युवा शिक्षकों की टीम जिस तरह से मीडिया कर्मियों की नई पौध तैयार कर रही है, उनका एक बेहतरीन आधारभूत ढांचा, और उन्हीं के साथ जैसा डॉक्टर उषा ने बताया कि हमने उनके साथ एक तरह से हाथ मिलाया और वहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर एम.एन. हुडा ने इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपने संसाधन हमारे साथ जोड़े। इसी विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के सहायक प्रोफेसर श्री जयंत राठी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे, जैसा कि हमारी परंपरा है, जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, उनका हम स्वागत करते हैं ई बुके से। तो ई बुके से भाई डॉक्टर मनीष जैसल का यहाँ हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और ये जो पुष्प है भले कृत्रिम दिखाई दे रहे हैं, आभासी मंच पर हैं, लेकिन इसके साथ हमारी भावनाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं, इस उम्मीद में कि जिस तरह से किसी उद्यान में जाकर के हम फूलों की खुशबू को महसूस करते हैं, तो क्यों नहीं इस विचार मंच पर भी हम इन्हीं पुष्पों की खुशबू को कुछ महसूस करें विचारों के रूप में, और इन विचारों को दिग दिगंतर में इसी तरह से हम फैलाते रहें, क्योंकि ये जो आभासीय मंच है इसने सारी भौगोलिक सीमाओं को, सारी बाधाओं को तोड़ दिया है। तो हमारी भाषा, हमारे प्रतीक, उसको समझने वाले दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं वहां तक हम इस मंच के माध्यम से पहुंचने का एक प्रयास करते हैं और किसी न किसी प्रकार से इस विचार यज्ञ में अपनी आहुति देने का और उन मित्रों की आहुति लेने का ये एक छोटा सा विनम्र प्रयास है।
डॉक्टर मनीष जैसल, जिनका विस्तृत परिचय मैं जैसे ही उनको आमंत्रित करता हूं अपना वक्तव्य देने के लिए मैं उनके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आज के विषय की। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऐतिहासिक फिल्में होती हैं उनके साथ हमारा एक विशेष जुड़ाव और लगाव रहता है, और कहीं ना कहीं हमारी आस्थाएं उनके साथ जुड़ती हैं। तो आज जब हम बात करते हैं स्वाधीनता संघर्ष की, तो जो नई पीढ़ी है वो कैसे हमारे उस स्वाधीनता संग्राम किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन जब उसके दृश्य को हम पर्दे पर देखते हैं तो एक अजीब तरह के रोमांच की अनुभूति होती है। पिछला जो हमारा वेबिनार का जो एपिसोड था, जो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में आयोजित किया था, जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, दुर्भाग्य से मुझे जानकारी नहीं थी, हो सकता है आप में से बहुत सारे मित्रों को जानकारी हो। मैंने एक रेफरेंस देखा 1942 में अगस्त में उषा मेहता 22 साल की युवती, विल्सन कॉलेज की विद्यार्थी बॉम्बे के, किस तरह से उसने गांधी से प्रभावित होकर के आजीवन अविवाहित रहते हुए राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। और उसी दौर में जब समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई तो उन्होंने कांग्रेस रेडियो की स्थापना की और 3 महीने का प्रसारण करते हुए देश में जिस तरह से जागरूकता फैलाने का काम किया। और जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक रेफरेंस देखा कि इसी थीम के ऊपर देखिए आप, केवल कांग्रेस रेडियो की स्थापना को लेकर के पिछले वर्ष मार्च 2024 में अमेजॉन प्राइम पर एक फिल्म दिखाई जाती है। उसका जो पहला रिलीज हुई वहां पर, ए वतन मेरे वतन। जब मुझे उसका रेफरेंस मिला तो फिर मैंने उस फिल्म को 2 दिन पहले अमेजॉन प्राइम के ऊपर जाकर के देखा। क्योंकि मैंने उस कांग्रेस रेडियो के बारे में पूरी जानकारी को पढ़ा था, तो उस फिल्म को देखते देखते एक रोमांच की अनुभूति हुई। और संयोग से चूंकि इन दिनों बॉम्बे हूं, तो मैंने बच्चों से कहा कभी समय मिले तो मुझे वो जगह दिखा के लाओ, वो मैदान जहां गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया, वो मणिबेन सरदार पटेल की बेटी जिसने अपना एक मकान या भवन उनका था, उसे किस तरह से उषा मेहता ने गांधी के संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। वो बिरला हाउस जहां गांधी जी उस रात्रि को ठहरे थे और जहां से गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो जब इतिहास की आपको जानकारी होती है और जब आप पर्दे पर चित्रित हुए देखते हो किस तरह से पुलिस ने छापा मारा, किस तरह से जब वंदे मातरम की धुन बज रही थी, वंदे मातरम गीत बज रहा था, और इन क्रांतिकारियों ने, आप सोचिए 22 वर्ष की उम्र होती क्या है, उसमें कितना उनके मन में दर्द और पीड़ा इस देश को आजाद कराने के लिए। और उस पुलिस को उन्होंने मना कर दिया कि हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक ये गीत खत्म नहीं हो जाता है। किस तरह से वो हर दिन जगह को बदलते रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो स्वाधीनता संघर्ष पर केंद्रित फिल्में बनी हैं, चाहे वो भगत सिंह की स्टोरी हो, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सरदार फिल्म बनती है, न जाने कितनी फिल्में बनी, विस्तार से भाई मनीष असल उसके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन इवन गांधी का जो रिचर्ड एटनबरो ने फिल्म बनाई गांधी की, हालांकि कई बार मुझे लगता है कि इन फिल्मों में जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो जो फिल्मकार है वो कुछ घटनाओं को केंद्र में लाता है और उस फिल्म में रोमांच पैदा करने के लिए कि सपाट घटना को जब आप दिखाएंगे तो शायद उसमें इतना रोचकता नहीं आ पाए, तो वो एक कहीं इम्प्रोवाइज करता है, थोड़ा बहुत थिएटर से जुड़े रहे। तो डायरेक्टर कई बार उस मूल कृति में अपने हिसाब से ऑडियंस को उसकी ग्रिप को पकड़ने के लिए कुछ इम्प्रोवाइज करता है, नई चीजें जोड़ता है उस मूल कथानक के भाव को बनाते हुए। तो मुझे लगता है फिल्म में भी यही होता है, क्योंकि फिल्म इतिहास नहीं है, वो इतिहास की पुनर्व्याख्या है, एक तरह से इतिहास को वो जीवंत करता है पर्दे पर। तो कई बार लगता है कि उस कैरेक्टर के साथ, उस घटना के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ, उसके साथ कई बार विवाद भी होते हैं, उन्हें पूरी तरह से वो नहीं ला पाते क्योंकि उनका एक लक्ष्य है कि उस आजादी के संघर्ष के जो अलग अलग चरण थे उनके बारे में हम अपने दर्शकों को बताएं। तो भाई मनीष ऐसा उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो फिल्में हैं वो कहां तक इतिहास के साथ न्याय कर पाती हैं। लेकिन मुझे लगता है फिर भी जब हम पर्दे पर वो सारे के सारे दृश्य देखते हैं, गांधी का सत्याग्रह आंदोलन, नमक जब उन्होंने बनाना शुरू किया, अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ा, किस तरह से पुलिस के अत्याचार हुए, किस तरह से जेल में यातनाएं दी जा रही थी। कई बार लगता है जैसे जब ये वल्लभ भाई पटेल पर फिल्म आई सरदार, अपने आप में एक लौह पुरुष के रूप में देशी रियासतों को किस तरह से उन्होंने एक करके भारत के एकीकरण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और गांधी और इन पे जो फिल्में बनी, शायद कहीं सरदार पटेल विलुप्त हो गए या उपेक्षा होती चली गई, लेकिन फिल्मकार उन पर एक फिल्म बनाता है ना। भगत सिंह, उनके विचार किस तरह के थे, उस फिल्म के माध्यम से जिस तरह से दिखाते हैं, भगत सिंह का एक रूप प्रकट होता है
बहुत सारे पक्ष शायद कहीं रह भी जाते हैं, उसको लेके आलोचक अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन जो क्रांति की गाथा जिस तरह से इन फिल्मों के माध्यम से है, वो बहुत रोमांचित करती है। और मुझे तो लगता है कि नई पीढ़ी के हमारे जो युवा हैं, उसको देखें, उन्हें महसूस होगा कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन क्रांतिकारियों ने, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो कलम के धनी थे, चाहे तलवार के धनी थे, जिस तरह से इस देश की आज़ादी के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसका आज उपयोग कर रहे हैं आप, उसके लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। मंगल पांडे किस तरह से बैरकपुर में उन्होंने उस क्रांति का शुरुआत किया, और हमारे यहाँ डॉक्टर उषा मेरठ से ही हैं, और किस तरह से मेरठ में वो आग फैलती है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसके माध्यम से आप वहां तक पहुंचते हैं। तो यही सोच करके मुझे लगा कि क्यों नहीं इस बार हम उन फिल्मों के संदर्भ में बात करें कि किस तरह से वो जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था, लड़ा गया, और हमारे फिल्मकार उससे किस तरह से प्रेरित हुए, और कम से कम हमें उस उस काल को कहीं सोचने के बारे में, अतीत की स्मृतियों को या अतीत के जिन प्रश्नों को हमने किताबों में पढ़ा है, उनको जीवंत करने का। जब मैं उषा मेहता के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे तो एक टीस हुई। उनकी डेथ हुई 2000 में, 1988 में उन्हें पद्म विभूषण का जो भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। बाद में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रही। केतन मेहता उनके भतीजे हैं, जो स्वयं एक फिल्मकार हैं। एक मन में रहा, काश 2000 तक हम इतने वरिष्ठ हो गए थे, उनके दर्शन कर पाते और उनसे कहीं सुन पाते कि किस तरह से उन्होंने वो सारा का सारा संग्राम जो है, अभी तो हम दूसरे सोर्सेज से ये सारी जानकारी ले रहे हैं। इंडिया टुडे में उनका एक इंटरव्यू का रेफरेंस मैंने देखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसे भारत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन हाँ, फिर भी भारत ने बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति की है। तो किस तरह की उनके मन में वो ख्वाब थे। उनके पिताजी जज थे सरकारी ब्रिटिश सरकार में। किस तरह से उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब गांधी का 8 साल की उम्र में उन्होंने दर्शन किया था, तभी उन्होंने संकल्प ले लिया था। कितने डंडे पड़े और किस तरह से, लेकिन तिरंगा नहीं झुकेगा। तिरंगे को जब उन्होंने छीन लिया, तो अगले दिन वो ड्रेस पहन कर आए 3 रंग की। कैसे कैसे उन्होंने चीजों को, कैसे धन इकट्ठा किया, आर्थिक संसाधन जुटाए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देश के लिए कितना बड़ा समर्पण था। तो आइए, आजादी की इस पृष्ठभूमि में जब हम बात कर रहे हैं, आजादी का पर्व मनाएंगे हम। जिस तरह से हम लौकिक पर्व मनाते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो उत्साह हमें होली दिवाली जैसे पर्वों में रहता है, क्यों नहीं ये उत्साह हम 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पर्वों के साथ जोड़ सकते हैं। पूरा देश कहीं उस तरह का संकल्प ले, हम भी अपने से यात्रा शुरू करें, वो भाव कहीं हम जगा पाए, तो मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता दिवस और मनाना अपनी सार्थकता को ले पाएगा। तो आइए, हम ऐसे ही क्रांतिकारियों को इन फिल्मों के माध्यम से याद करते हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का स्वप्न है, उस स्वप्न को साकार करने के लिए केवल आह्वान वो स्वप्न साकार नहीं कर सकता, पूरे देश की चेतना को उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। पारस्परिक विद्वेष और ये सारे तनाव को छोड़ करके हमें उस भारत की कल्पना करनी होगी, तभी शायद ये सपने साकार होंगे। तो आइए, डॉक्टर जैसल जो फिल्मों के विद्यार्थी हैं, लंबे समय से शोध अध्ययन अनुसंधान कर रहे हैं। संयोग से मुझे ग्वालियर, जयपुर और बॉम्बे में इनसे मिलने का अवसर मिला। ये बॉम्बे पिछले दिनों में आए थे। किस तरह से यहाँ के फिल्मकारों से इंटरव्यू ले रहे थे, कैसे उनका समय चुरा रहे थे, गाड़ी में बैठ करके या शूटिंग की उस पर जाकर के, किस तरह से इन्होंने उन जो बड़े बड़े फिल्मकार हैं उन सब से इन्होंने बातचीत की, और जो उसके विभिन्न संदर्भ हैं उन्हें इन्होंने टटोलने की कोशिश की, उनके इंटरव्यूज लिए। 100 से अधिक अलग अलग क्षेत्रों के जो सिनेमा के अलग अलग डिसिप्लिन हैं, चाहे वो कलाकार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, टेक्नीशियन हैं, कैमरामैन हैं, उन सबको इंटरव्यू करने का आपको मौका मिला। और फिल्म ऐसे मीडियम को उन्होंने समझा अपने अध्ययन के दौरान। जब ये वर्धा, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वहां जब आप विद्यार्थी थे, तो इन्होंने सिनेमा को एक माध्यम के रूप में चुना, एक अध्ययन के रूप में चुना, और इस क्षेत्र में आपकी 4-5 पुस्तकें आ चुकी है। आपने नॉर्थ ईस्ट के सिनेमा को देखा, उस पर आपने किताब लिखी। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप लिख रहे हैं, और जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी और पीएचडी, तीनों विषयों में आपने अपनी मास्टर्स की उपाधि भी प्राप्त की है। इसके अलावा आप एक साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गूगल ने आपको एक सर्टिफाइड फैक्ट चेकर के रूप में, आप जगह जगह अपनी वर्कशॉप्स ले रहे हैं, कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में भी आपने काम किया है, और एआई
जो आज का एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है और पिछले दिनों में हमने काफ़ी वर्कशॉप्स की हैं एआई को लेकर के, अभी एआई रिसर्च को लेकर के हमने बात की है। इसी तरह से एआई को लेकर के हमने बहुत सारी वेबिनार्स भी की हैं, क्योंकि आने वाला दौर इस तकनीकी युग है और एआई के एक्सपर्ट्स को हमने बुला करके जानने की कोशिश की कि भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी, क्या चुनौतियां होंगी। तो मनीष जी भी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपने अनेक शोध पत्र लिखे हैं और आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं। दिल्ली सरकार का श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2023 में, मीडिया फेडरेशन 2024 में उन्होंने भी आपको एक सम्मान दिया है। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जो फिल्मों में स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं उनका, उस एसोसिएशन के भी आप सदस्य हैं। और टीवी एंड फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन मुंबई, उसके भी आप मेंबर हैं। और फिलहाल आप आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में, जो उनका स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, वहाँ पे अध्यक्ष के रूप में भी आप अपने डिपार्टमेंट को लीडरशिप दे रहे हैं। मैं डॉक्टर मनीष जैसल से अनुरोध करूंगा कि इस विषय के विविध पक्षों पर जो आपका चिंतन मनन है, आपका शोध अनुसंधान है, उसके बारे में कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर मनीष जैसल। जी, बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? जी। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ को बहुत धन्यवाद कि इस वेबिनार सीरीज में मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय संजीव भनावत सर का सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहता है। आपका एक संदेश मेरे लिए एक अलग भूमिका में रहता है। आपका संदेश आया और मैं मैं मना कर भी नहीं सकता। और मेरे लिए अच्छी बात ये रहती है कि यह विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और सिनेमा से मैं मुझे लगाव बहुत है। इसलिए मैंने इस विषय को बहुत आसानी से हाँ भी कर लिया कि मैं इस विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा दिन है आज। आज भी और ये पूरा का पूरा महीना अगस्त, सर ने शुरुआत में अपनी बात रखी। हम 15 अगस्त मनाने की ओर बढ़ रहे हैं। उस 15 अगस्त की ओर, इस 15 अगस्त को पाने के लिए हमारे जो रणबांकुरों ने, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजियां लगा दी। हम 15 अगस्त याद रख पा रहे हैं इसलिए क्योंकि उससे पहले की बहुत सारी तारीखें गुजर चुकी हैं। उनमें एक तारीख है 8 और 9 अगस्त, जिसे हम अगस्त क्रांति के तौर पर मानते और मनाते हैं। मनाते नहीं हैं, इस बात पर ज्यादा फोकस मेरा है क्योंकि हम उषा मेहता को भूल चुके हैं। हम तमाम उन लोगों को भूल चुके हैं जो ग्वालियर टैंक मैदान पर करो या मरो का नारा उस समय दिया जा रहा था और सारे पुरुषों को जब बंद कर लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया, तब इस देश की एक महिला ने जाकर के झंडा फहराया। हम तब बात करना चाहते हैं कि कैसे उन दिनों में, कैसे उस समाज ने हम तक वो बातें पहुंचाई कि ये जो गांधी जी ने ये कह दिया, लोहिया जी ने ये कहा। लोहिया जी का संदेश, एक संदेश देने के लिए उषा मेहता ने क्या क्या कर दिया। रेडियो को कैसे छिप छिप करके चलाया गया। यही सब बातें अगर समाज जान जाएगा, आज की जो जेनजी की पीढ़ी है वो समझ जाए, तो उसे एहसास होगा कि हमने आजादी यूं ही नहीं पाई है। ए वतन मेरे वतन का जिक्र हुआ। ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब फिल्म है। सबसे अच्छी बात है इस फिल्म के राइटर, इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के एक्टर, इन तीनों का इंटरव्यू करने का मुझे अवसर मिला है। इस फिल्म के राइटर दारा फारूकी हैं, डायरेक्टर राइटर दारा फारूकी हैं और निर्देशक कन्ना नैयर हैं। और इसके राइटर जो एक्टर हैं उसमें कुछ भूमिकाओं में है, इसमें स्पर्श श्रीवास्तव और अभय वर्मा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी सिनेमा का कोई ऐसा बड़ा फिल्मकार, सर ने केतन मेहता का भी नाम लिया, किसी ने इस फिल्म को बनाने की जरूरत नहीं की। ये फिल्म 2024-23 में क्यों आ रही है? और ये फिल्म पूरी की पूरी आप देखिए, कम्युनिकेशन एज ए मीडियम को समझने की एक बहुत अच्छी फिल्म है। आप समझिए कि रेडियो एक, सिर्फ एक रेडियो की आवाज सुनने के लिए पूरी की पूरी फिल्म है वो। छात्रों को मुझे लगता है, जो बीजेएमसी के, एमजेएमसी के जो छात्र हैं, उनके लिए यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ फिल्म नहीं है, वह एक तरीके से केस स्टडी है, जहां मैं कहूं कि एक तरीके से रेफरेंस है वो। आप समझिए कि एक मैसेज
उस दौर में, जिस दौर में अखबारों की स्थिति खराब थी, अखबार बंद किए जा रहे थे, अखबारों पर सेंसरशिप थी, उस दौर में एक रेडियो को भी बंद कर दिया गया था, तब जाकर के उस आवाज़ को दिखाया गया। मैं उन दिनों के इन्हीं संदर्भों को याद करते हुए, समझते हुए अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर हम जो आज का जो स्वरूप देख रहे हैं, उसकी कल्पना हमारे पुरखों ने शायद ही की रही हो। लेकिन भक्ति से भरे पूरे जिस राष्ट्रबोध की भावना से देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने जो भूमिका निभाई वो विचारणीय है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। ऐसे में राष्ट्रबोध की अलख जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, आम जनों के योगदान का पुनर्पाठ होना चाहिए। हालांकि इन कार्यों और इनके योगदान को हम सभी ने अखबार की कतरनों, किताबों, पत्रिकाओं, कविताओं के जरिए खूब समझने का प्रयास किया है, लेकिन नई सदी के सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम सिनेमा के जरिए राष्ट्रबोध को समझना अभी भी नया विषय है। भारत का ऐतिहासिक अध्ययन हमें इस ओर इशारा करता है कि जब-जब भारतीय संस्कृति पर आघात हुआ है, वह अपने भीतर राष्ट्रीय स्व को जागृत करने वाली शक्ति के साथ सामने आया। भारतीय भक्ति परंपरा भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसी राष्ट्र को समझने के लिए राष्ट्र की प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम देश अपनी भक्ति परंपरा को लेकर कितना जागरूक रहा है, यह हमें इतिहास खंगालने पे समझ आता है। इसी भक्ति परंपरा में आक्रमणकारी तुर्कों, मुगलों द्वारा उनके आतंक के संकट का प्रतिरोध भी किया गया। 1556 में गोवा में पहली प्रेस की स्थापना के बाद 200 वर्षों तक प्रचारित किए गए ईसाई धार्मिक साहित्य के इसी भक्ति परंपरा ने खुद को स्थापित की है। यह बात अलग है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो जाने के बाद ईसाई मिशनरी कार्यक्रमों में तेजी आई। लेकिन भारतीय सांस्कृतिक प्रतिरोध का यह असर भी हमें ऐतिहासिक रूप से देखने को मिलता है कि 1857 के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं पर हस्तक्षेप न करने का फैसला लिया और बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि अंग्रेजों ने धार्मिक मामलों को उठा करके पेश किया हो। हमेशा से माना जाता रहा कि किसी देश में रह रहे लोगों को धर्म व्यवस्था के व्यवहार के साथ-साथ वहाँ की देशज परंपराएं, खान-पान, पहनावा, संगीत, कला, नृत्य, नाटक, भाषा, साहित्य आदि मिलकर राष्ट्रीय भाव का निर्माण करते हैं। अगर कोई देश या कोई ब्रिटिश हुकूमत अगर इन पर किसी भी पॉइंट पर जाकर के अगर वो चोट पहुँचा रही थी, वहाँ पर लोग इसको महसूस कर पा रहे थे और उनको लगता था कि ये हमारे ऊपर चोट है। इन्हीं अवयवों को ध्यान में रखकर अगर मैं इतिहास का पुनर्पाठ करूं तो मैं ये पाता हूं कि भारतीय जनजातियों ने भी 18वीं और 19वीं शताब्दी में अपने धर्म परंपरा पर किए गए हस्तक्षेप को स्वीकार किया था और आप देखिए कि बिरसा मुंडा जैसे हमारे नायकों ने उनका खुले तौर पर विरोध किया। भारतीयता और राष्ट्र को समझने के लिए सरदार अजीत सिंह के कार्यों को भी याद किया जाना चाहिए। गांधी का स्वज्ञा आंदोलन भी समझना जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के राष्ट्र निर्माण के विचारों को समझना भी जरूरी है। मैं अगर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के जो हेड हैं नरेंद्र शुक्ल, उनकी बात पर अगर गौर करते हुए ये बात रखूं, तो हमें इस ओर समझने पर मजबूर करते हैं वे कि हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन विभाजन की विभीषिका के साथ। स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय राज्यों ने जो तंत्र औपनिवेशिक सत्ता से पाया, उसमें भारतीय तत्व कितना था? यह सवाल आज भी उतना ही है। कितना उसे भारतीय तत्व के अनुसार विकसित किया गया, यह भी हमें समझने की जरूरत है। आप सोचिए जो देश किसी का गुलाम है और वह किसी अन्य देश की आजादी का जश्न कैसे मनाता होगा। एक फिल्म का नाम मैं अगर लूं 1946 की एक फिल्म है डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। यह एक ऐसी ही फिल्म है। यह फिल्म बताती है वी शांताराम की इस फिल्म में सोचिए कि वो फिल्म जो देश खुद गुलाम है और वो चीन की आजादी पर बात कर रहा है और उसमें एक गाना है वी शांताराम की इस फिल्म में एक गाना है कि गुलाम नहीं तू जोश में आ चल आ चल आ ये देश है तेरा होश में आ चल आ चल आ धरती माता का फरमान कदम कदम पर दे दे जान फिर देश को फिर आजाद करें जय जवान जय किसान। यह फिल्म भारतीय संदर्भों पर नहीं है। यह फिल्म चीन की आजादी के संदर्भ में है और यह सिर्फ गाना डाला गया इस फिल्म में। उस समय का अगर आप पूरा इतिहास देखें सिनेमा का तो सेंसर नीति जो जिस तरीके से हावी थी और उस सेंसर नीति में ऐसे गानों का चलन
इन गानों को चला पाना, इन गानों को रिलीज कर पाना, इन गानों को लोगों तक पहुंचा पाना बहुत मुश्किल था। और इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो चीन की पृष्ठभूमि पर थी, लेकिन इसका जो गाना जो मैंने आपको बताया, इसके सहारे भारतीयों को एक संदेश दिया गया कि आप भी एक होकर लड़ सकते हैं, एक होकर के सामने आ सकते हैं। और शायद असर रहा होगा कि लोग किसी न किसी माध्यम से जुड़ते चले गए। यंग इंडिया लेवल पर रिकॉर्ड हुए इस गीत को दीवान शरण ने लिखा था, बसंत देसाई ने इसका संगीत तैयार किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने चीन पर कई हमले किए। नेहरू ने चीनी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। 7 जुलाई 1938 को नेहरू ने लंदन में चाइना एसोसिएशन को संबोधित करते हुए कहा था कि हम हर मदद का आश्वासन आपको देते हैं। चीन की मदद के लिए डॉक्टर कोटनिस एंड उनकी टीम को मेडिकल दस्ते के साथ भेजा गया और कहा गया कि इस फिल्म शांताराम की इस फिल्म को देखते हुए जिस राष्ट्र और उसके प्रति आत्मीयता बढ़ती है, वह और फिल्मों में हमें और किसी देश की फिल्मों में दिखाई नहीं देती है। इसी क्रम में एक और फिल्म का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ, जिंदगी सपना नहीं। उस फिल्म में खान मस्ताना का लिखा हुआ एक गाना आज भी विचारणीय है। फिल्म का गाने के बोल हैं, सीना ताने हुए, दिल में ठाने हुए, जाके सेवा करेंगे, कुछ करे या ना करे, जान देने का नाम है जिंदगी। अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब के बारिश में ये दीवार भी ढह जाएगी। फिल्म की कहानी राष्ट्रबोध का परिचय कराती है। ये गाने उस दौर के हैं जिस दौर में सेंसरशिप थी, जिस दौर में अंग्रेजों के हम गुलाम थे। भारत छोड़ो आंदोलन और उस समय आजादी का बिगुल बज चुका था। उस दौर में ये गाने फिल्मों के गाने लिखे जा रहे थे। फिल्म की कहानी भले ही पूरे तरीके से राष्ट्रीय भावना को जागृत ना करती हो, लेकिन उनमें किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी अंदाज में इन गानों के बोलों को रख करके लोगों को एक करने का प्रयास किया जा रहा था। 1943 में एक और फिल्म आती है वी शांताराम की शकुंतला, जिसे राजकमल कला मंदिर ने रिलीज किया था। विश्व का सबसे पुराना नाटक शकुंतला के सैकड़ों प्ले हो चुके हैं, लेकिन इसका फिल्मी रूपांतरण यह पहली बार हुआ था। फिल्म में 11 गीत हैं और 2 आजादी के गीत एक ही ग्रामोफोन में रिकॉर्ड किए गए थे। यह कहना गलत नहीं होगा, इस दौर में फिल्मों के सहारे राष्ट्रबोध का प्रचार प्रसार काफी बड़े स्तर पर किया जा रहा था। कई फिल्मों की कहानियों में नहीं तो इसके गीतों में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिससे लोग एक होने का लोग एक हो रहे थे। बात सिनेमा की हो, सिनेमा में राष्ट्रवाद की हो या राष्ट्रबोध की हो, ग्रामोफोन अपनी भूमिका से पीछे नहीं हट सकता है। मन जैसे कि उषा मेहता की उस फिल्म में ऐ वतन मेरे वतन में आप देखते हैं कि रेडियो की बात हो रही थी। जब रेडियो बंद हो रहा था तब ग्रामोफोन का काम चालू हो रहा था। और आप देखेंगे उस फिल्म में ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देते हैं कि उस ग्रामोफोन के जहाँ रेडियो की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, वहां ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स पहुंचाए जा रहे थे। तो सिनेमा में राष्ट्रबोध की बात हो और ग्रामोफोन का जिक्र ना हो, यह भी गलत है। लंबे अरसे तक ग्रामोफोन सिनेमा की आवाज बना रहा। बोलती फिल्मों के दौर में भी ग्रामोफोन में ही गीत संगीत रिकॉर्ड किए जाते थे। नारी गादी नाम के एक फिल्म मेकर हुए, इनके इनकी द्वारा बनाई गई एक फिल्म है लेफ्टिनेंट। उसका ये बड़ी दुखद बात है कि उसका एक भी प्रिंट भारत में मौजूद नहीं है, लेकिन फिल्म के 2 गाने आजादी और राष्ट्रबोध का परिचय कराते हैं। दिल्ली निवासी एक अखिलेश झा जी हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स वो रखते हैं। उनको कह सकते हैं कि संग्रह करने का उनको बहुत शौक है। वो कहते हैं कि उनके पास में द हिज मास्टर वॉइस रिकॉर्ड पर इस तरीके के गाने उनके पास मौजूद हैं और उन्हीं में से मैंने सुना और उनको पाया कि उसमें गाना था कि दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ के हम लहराएंगे, जालिम को दुनिया से मिटाकर जय जयकार मनाएंगे। सोचिए ये गाना किस दौर का है, आज़ादी से पहले का है। और जो लोग कहते हैं कि सिनेमा के ज़रिए या सिनेमा उस दौर में काम नहीं हो पा रहा था, उस दौर में ये गाने कैसे राष्ट्रवाद के भाव को लेकर के, राष्ट्रबोध को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। के नारायण राव के संगीत पर सजे इस गीत को मुस्तफ़ा ने लिखा था और यह गीत उस दौर का है, जिस दौर में उपनिवेशवादी और विस्तारवादी देशों ने अपनी हवस के लिए दुनिया को युद्ध में ढकेल दिया था। भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था और अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक के रूप में काम कर रहे थे। इंडिया अमेरिका इंग्लैंड और अमेरिका की जापान जर्मनी से लड़ाई में भारत का क्या लेना देना, ये सवाल आज भी मन में उठता है।
अजब संयोग ही रहा कि जिस जापान और जर्मनी की मदद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को आगे बढ़ाया, अंग्रेजों ने उन्हीं देशों के खिलाफ भारतीयों को सैनिक बनाकर उनके सामने खड़ा किया। यह सवाल भी बड़ा सवाल है। हम वतन परस्त और वतन फरोस्त के बीच का अंतर भूल गए। हालांकि राष्ट्रबोध का चिंतन कराने वाली यह फिल्म ब्रिटिश सेंसरशिप की भेंट चढ़ गई, लेकिन इसके गीत आज भी आर्काइव में मौजूद हैं, लेकिन सरकारी संग्रहालय में मौजूद नहीं है। यह भी एक बड़ा सवाल है। 16 जुलाई 1943 की बॉम्बे टॉकीज नाम की एक फिल्म, बॉम्बे टॉकीज के बैनर से एक फिल्म आती है, किस्मत। उसका एक गीत हम सब ने सुन रखा है। यह कवि प्रदीप का लिखा हुआ गीत है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। वैसे तो यह गीत जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लिखा गया, लेकिन हमारे काबिल लेखकों ने इस ऐसे कई और गीत तैयार किए जो अंग्रेजों की पकड़ से बाहर थे। लोगों को पता ही नहीं चला इन अंग्रेजों को कि ये गाने किस लिए लिखे जा रहे हैं, इसका मोटिव क्या है। यह गीत भी कुछ ऐसा ही है। इसमें कहा गया कि इसमें हिमालय, मंदिर मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, गुरुद्वारा जैसे भारतीय राष्ट्र को संबोधित करने वाले अवयवों का प्रयोग था। इसमें कवि प्रदीप कहते हैं कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। यह कहानी आपको जानकर आश्चर्य होगा, किस्मत फिल्म अगर आपने देखी होगी तो पूरी फिल्म में इस गीत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये गीत डाला गया क्योंकि संदेश देना है, लोगों को एक करना है। और फिल्म की कहानी कहीं से भी सेट नहीं बैठती है, इसके बावजूद इसे रखा गया। ग्रामोफोन के जरिए इसको लोकप्रियता मिली। आज भी जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी और 2 अक्टूबर मनाते हैं तो इन गीतों को जरूर सुनते हैं। 1943 की एक और फिल्म प्रेम संगीत, विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई एक प्रेम कहानी है, लेकिन फिल्म का एक गीत, उसके बोल ऐसे लगते हैं जैसे युद्ध जो है वो एक भारतीय लड़ रहा है। यह गीत ब्रिटिश हुकूमत के दौरान उस दौर के हिसाब से आसानी से समझा जा सकता है। यह फिल्म का बस ये समझ लीजिए कि विश्व युद्ध हो रहा है, लेकिन इसमें भारत कहाँ से आ गया, यह भारत को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, भारत के अवयव कैसे इसमें डाले गए, एलिमेंट कैसे डाले गए, या उस समय के राइटर्स के दिमाग को हमें समझना पड़ेगा। इसमें कहा जा रहा है, इसमें लिखा गया कि माताएं भी बहनें भी लड़ने को दीवानी हैं, बूढ़ों में भी बच्चों में भी आई जवानी है, सोए शेरों को जगा दिया किसकी नादानी है। जी, यह गीत जब आप सुनेंगे आपको लगेगा कि वाकई में बहुत अलग अलग किस्म का है और आपके अंदर एक चेतना भरती है। इसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर दूसरे तरफ, ये एक तरफ था, दूसरे साइड में जो गाना था उसके जो बोल हैं वो ये हैं कि शेरों की संतान तुम ही, आंधी और तूफान तुम ही, भारत माता के चरणों में वीरों हो जाओ कुर्बान, बढ़ते कदम और मुख में नारा हिंदुस्तानी हो, हिंद हमारा मंदिर मस्जिद काबा का सी द्वार, अपने इस पाक वतन में गैरों का क्या काम, गैरों को दूर भगाने की असली जिम्मेदारी है, माताएं भी बहनें भी लड़ने को दीवानी हैं। सोचिए पूरे बोल अगर आप सुने, इनके लिरिक्स सुने, क्योंकि उस दौर में सिनेमा को देखने वाले लोग बहुत कम थे, पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन गाने पहुंच जा रहे थे घरों में रिकॉर्ड्स के जरिए। इस पूरे गाने को और पूरे लिरिक्स को अगर सुनते हुए एक फील किया जाए, हम आज भी अगर सुन रहे हैं तो फील कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि हम कैसे उनके खिलाफ हो जाएं, हम कैसे एकजुट हो जाएं उस दौर के खिलाफ। इस फिल्म के इन गीतों में जो बातचीत है वो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए नहीं है, बल्कि विश्व युद्ध में शामिल इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे देशों के लिए कहे जा रहे हैं। ऐसे में एक शोधार्थी होने के नाते इन कंटेंट को मौजूदा समय के अनुसार हमें समझना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। 1944 की प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर में एक फिल्म बनती है चांद। इसमें एक गाना जो है वो राष्ट्रबोध का चित्रण करता है, वतन से चला है वतन का सिपाही। यह उस दौर का गीत है जिस दौर में आजाद हिंद फौज बनती है, और वह आजाद हिंद फौज की सीमाओं, उनकी जो सीमाएं हैं, सीमाओं पर अंग्रेजों के विरुद्ध की लड़ाई लड़ रहा है। इस फिल्म में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति जैसा कोई प्लॉट नहीं था, लेकिन फिल्म में लाहौर से गायक और गायिका मुंबई में अपना भाग्य आजमाने आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक गाना इसमें डिजाइन किया गया, इसमें गाना रखा गया। और इनमें इस गीत में कृष्ण, महाराणा प्रताप, बाबर की शमशीर, अकबर की तकदीर, अभिमन्यु और इन जैसे चित्रों का
सोचिए कि इनको इनको शामिल किया गया, और जब इनको शामिल किया गया तब एहसास होता है कि हाँ, ये हमारे चीज़ें हैं, ये हमारे गौरवशाली चीज़ें हैं, ये हमारा गौरव है, ये हमारे आइकॉन्स हैं, और हम उस दौर के जो लोग थे इनको सुन कर के एक तरीके से जुड़ रहे थे। यह बड़ी अच्छी बात है। 1936 की एक और फ़िल्म है करोड़पति। इसमें भी जो विलायती आका थे, जो हमारे हम पर राज कर रहे थे, उनको चोट करते हुए एक गाना और लिखा गया। यह फ़िल्म भी जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था एकदम हावी हो गई थी, जिस तरीके से लोगों को डिग्रीधारी मज़दूर बनाया जा रहा था, डिग्री के साथ में उनको बिना जॉब के रखा जा रहा था, वह बताने का प्रयास करती है। फ़िल्म का एक गीत है, बीए बनाने वाले बिगड़ी हुई बना दे। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो हमारे डिग्री है। बैचलर ऑफ बीए बनाने वाले बिगड़ी हुई बना दे, डिग्री दिलाने वाले हाँ मिलती नहीं है सर्विस, बेकार फिर रहे हैं बीए कहलाने वाले, एमए कहलाने वाले। सोचिए ये 1936 का गाना है, और संकट आज भी वैसा का वैसा है। समकालीन सामाजिक जो गतिविधियां अगर उनको दौर में अगर हम उसको देखें, तो हमें बहुत सारी और फिल्में नजर आती हैं। 1941 की एक फिल्म है नया संसार, इसमें भी गाना है कदम कदम पर नया तराना, नए ज़माने की बात करता है। और एक और फ़िल्म है 1944 की आईना, उस फ़िल्म में अगर मैं बात करूँ तो जोहराबाई अम्बालेवाली का गाया हुआ एक गीत है, भारत माता की बेटी, शक्ति का अवतार, समय-समय पर देवी तुमने बदला है संसार। इन सभी फ़िल्मों में, ये तो आज़ादी के पहले की फ़िल्में हो गईं। इन फ़िल्मों को अगर मैं बहुत जोड़-तोड़ के अगर पेश करूँ, तो आपको लगेगा कि ये गीत वैसे ही हैं, या ये फ़िल्मों की स्टाइल वैसी है, जैसा एक समाज, एक सोसाइटी उस दौर में चाहता था। और इसको अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए कि क्या हम वो कर पा रहे थे, या उस दौर के जो फ़िल्म मेकर्स हैं, क्या उनमें इतना दम था कि जो आपको बात कहनी है, वो कह पा रहे थे? बिल्कुल, उन्होंने कहने का पूरा प्रयास किया है। आप देखिए कि फ़िल्म आती है चल चल रे नौजवान, ये बंधन फ़िल्म का गाना है, चल चल रे नौजवान। ये उस दौर का गाना है, जिस दौर में जो युवाओं को एक किया जा रहा था। इसमें इसमें जो गाने के बोल हैं, चल चल रे नौजवान तू आगे बढ़ जा, आफत से लड़ जा, आंधी हो या तूफान। और इसको इसको जब आप सुनते हैं, इसको जब आप पेश करते हैं, आपके पास में एक ऐसा एक तरीके से अ, प्रतीकात्मक जो संघर्ष है आज़ादी का, वो आपको दिखाई देता है। सिनेमा हॉल में जब ये गीत बजता था, तो लोग वन्स मोर भी कह रहे थे, और फिर से चलाने की रिक्वेस्ट करते थे। अब मुझे अब लगता है कि हमें जब सिनेमा को इस हिसाब से देखना हो, इस तरीके से देखने का प्रयास करना हो, तो इन फ़िल्मों को ज़रूर देखा जा सकता है। एक और फ़िल्म आई, किस्मत की बात हुई, दूर हटोए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। इसको अनिल विश्वास का संगीत है, कवि प्रदीप ने इसको लिखा, और इस गाने में भी वर्ल्ड वार 2 की मैंने जैसे पहले बात की कि दूसरे विश्व युद्ध की बात थी, उसका रेफ़रेंस सेकंड वर्ल्ड वार था, लेकिन ये गाना बनाया भारतीय पर्सपेक्टिव में गया था। अगर मैं और फ़िल्मों की बात करूँ, तो एक फ़िल्म आती है 1936 में अमर ज्योति, विमल रॉय की ये फ़िल्म है। इस फ़िल्म में भी दुर्गा खोटे और चंद्रमोहन जी की बात है। इसमें वो कैरेक्टर हैं, और सरोजिनी नायडू का इसमें एक कैरेक्टर है, जो महिला पात्र है और सरोजिनी जैसी दिखती हैं, और अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए समुद्री डाकू बन जाती है, और अत्याचारियों के खिलाफ विद्रोह करती है। ये फ़िल्म भले ही किसी और एंगल में हो, लेकिन यह फ़िल्म बताने का प्रयास करती है कि अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ हमें खड़े होना है। यहाँ समुद्री डाक जो डकैती है, वह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो विद्रोह है, उसकी बात हो रही है। 1946 की एक और फ़िल्म है, धरती के लाल, ख्वाजा अहमद अब्बास की ये फ़िल्म है। इसमें जिस तरीके से 1943 का जो अकाल है, उसकी बात हो रही है, और अकाल के बाद जब ब्रिटिश नीतियों के कारण लाखों लोग भूखे मरने लगे, उसको बहुत एक तरीके से इस संदर्भ में रखा गया कि आप इसे देखें, और उससे प्रभावित हों। इससे कम से कम उसका जो दंश है ना, वो फ़ील करें।
और ये फ़िल्म आपने देखा कि जिस तरीके से ग्रामीण और शहरी दर्शकों के बीच जो ब्रिटिश शासन की नीतियों का दुष्प्रचार हुआ, दुष्प्रभाव हुआ, उसको उजागर करने में यह फ़िल्म आगे बढ़ती है। एक और फ़िल्म है शहीद, आज़ादी के जस्ट बाद ये फ़िल्म बनती है शहीद नाम की। रामानंद सागर शायद इसके निर्देशक थे, मैं निर्देशक का नाम कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। दिलीप कुमार साहब की ये फ़िल्म है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। ये सीधे 1947 के बाद जब आज़ादी मिल गई उसके बाद की फ़िल्म है। तो ये गाना ये बता रहा है कि आप खिलाफ खड़े होइए, आप विरोध करना शुरू करिए। वतन के खिलाफ नहीं खड़े होना, वतन के साथ खड़े होना है। यह फ़िल्म यह संदेश देने का प्रयास करती है। किस्मत नाम की जो फ़िल्म है ज्ञान मुखर्जी की 1943 में, इसमें भी आप देखें कि पहले देश है, बाकी सब कुछ बाद में है। तो ऐसी फ़िल्में उस दौर में हमारे सामने बनती जा रही थीं। अब देश आज़ाद हो गया, देश में बहुत सारी चीज़ें हो गईं। बहुत सारे नेहरू का मॉडल आ गया, नेहरू के बाद में फिर इंदिरा आई, इंदिरा के बाद में सत्ता परिवर्तन हुए बहुत सारे, लेकिन फ़िल्में बनना बंद नहीं हुई हैं। तो एक तो बात थी कि आज़ादी किस तरीके से सिनेमा के ज़रिए आज़ादी में योगदान दिया जा रहा था। अब सिनेमा जो है, वो आज़ादी को कैसे दिखाने का प्रयास कर रहा था। इसको भी अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ, इसको बताने का प्रयास करूँ, तो एक फ़िल्म है 1982 की फ़िल्म है गांधी जिसका ज़िक्र आदरणीय संजीव भनावत सर ने किया था। रिचर्ड एटनबरो की इस फ़िल्म में बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया। दुनिया में गांधी को समझने की इकलौती फ़िल्म है, जिसमें गांधी का एग्ज़ैक्ट चित्रण हमें महसूस होता है। महात्मा गांधी की जो अहिंसात्मक आज़ादी की लड़ाई थी, दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत तक और अंत तक स्वतंत्रता और सत्याग्रह की जो यात्रा थी गांधी की, उसको यह फ़िल्म दिखाने का प्रयास करती है। गांधी के लगभग चित्रों को अगर आप देखें इस फ़िल्म में, तो वो आपको सत्य के प्रयोग जो गांधी जी की आत्मकथा है, उससे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और गांधी पर बनी लगभग 25-30 फ़िल्मों में सबसे जो बेहतर फ़िल्म मानी जाती है, वह फ़िल्म यही है। यह जानकर बहुत दुख होता है कि भारत जिस आज़ादी के लिए, जिस आज़ाद भारत के लिए हमारे सपूतों ने जान लगा दी, उन पर बनने वाली फ़िल्मों में भारतीयों का योगदान बहुत कम है। एक भी निर्देशक की फ़िल्म ऐसी नहीं है भारतीय निर्देशक की जिसने गांधी पर एक अच्छी फ़िल्म बनाई हो, जिसने उषा मेहता पर कोई बढ़िया फ़िल्म बनाई हो, नेहरू पर कोई बढ़िया फ़िल्म बनाई हो, सरदार पटेल पर कोई अच्छी फ़िल्म बनाई हो। लेकिन ये इस दौर की बात है, हम अपने पुरखों को, हम अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको पेश करने में, उनको दिखाने में, उनकी हिस्ट्री को संजोने में हमने क्या योगदान दिया है, क्या सिनेमा के फ़िल्मकारों ने कितना बड़ा हमारा जो फ़िल्म उद्योग है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाने वाला उद्योग, क्या इन चीज़ों को भूलता जा रहा है? क्या भूल गया है? क्या उनके मॉडल में, क्या उनके पूरी प्रक्रिया में क्या ये फ़िल्में हैं ही नहीं? ये सवाल बड़ा है। केतन मेहता ने सरदार नाम की एक फ़िल्म बनाई 1993 में। भारत के पहले गृह मंत्री की भूमिका को जिस तरीके से सरदार पटेल ने निभाई थी और अंग्रेज़ों के बाद भारत की एकता और अखंडता और लोकतंत्र को स्थापित करने में जो सरदार पटेल की भूमिका थी, उसको लेकर के केतन मेहता ने सरदार नाम की फ़िल्म बनाई और फ़िल्म आपको लगेगी, लेकिन जब मैं सरदार को जानना चाहता हूँ, पटेल को जानना चाहता हूँ, जब मैं उनके काम को जानना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत सिनेमाई चित्रण टाइप में है। एक संदेश के नज़रिए से वो फ़िल्म मुझे लोगों को इम्पैक्टफुल करने की नज़र से मुझे वो फ़िल्म समझ में नहीं आती है। लेकिन कुछ नहीं से कुछ अच्छा था, इसलिए वो फ़िल्म मैं मान सकता हूँ। लीजेंड्स ऑफ भगत सिंह नाम की एक फ़िल्म है, 2002 में आती है। अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया है, भगत सिंह का जीवन और जलियांवाला बाग की उसमें घटनाएँ हैं, फांसी तक की बात है, क्रांतिकारी आंदोलन की गाथा है। इन सब के बावजूद वो फ़िल्म भगत सिंह के उन पहलुओं को छोड़ देती है, जिनकी हमें किताबों में स्पष्ट भूमिका दिखती है। क्या सिनेमा बनाने वाले लोग, जो फ़िल्में बनाने वाले लोग, वो पहलू उठा लेते हैं जिन पहलू को समाज एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा या उनसे फ़िल्म बिकेगी, फ़िल्म चलेगी या फ़िल्म का मॉडल कैसे सेट होगा, क्या वह होना चाहिए? मुझे लगता है ये सवाल बहुत जायज़ है और हम जैसे लोगों को एक साथ मिल कर के बात करके इन बातों को लिखना भी चाहिए कि हम अपने आइकॉन्स को वैसा ही देखना चाहते हैं, जैसा उनका असल में किरदार रहा है। आप उनके पहलुओं को ग्लोरीफाई करके मत दिखाने का प्रयास करें।
शहीद नाम की एक फ़िल्म है जिसको मनोज कुमार साहब ने उसमें अभिनय किया है। उसमें भी कई गाने हैं, मैं गानों की बात तो मैं कर ही रहा था। गानों के ज़रिए जहाँ तक बात है, वो आपको दिल को टच करते हैं। क्योंकि गाने लिखने वाले जो लिरिसिस्ट हैं, उनमें वो बात तो आ जाती है। लेकिन फ़िल्मों की अगर मैं बात करूँ, फ़िल्म के मैसेज ओवरऑल मैसेज से बात करूँ, तो वह काम अभी तक देश में उस हिसाब से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम की एक फ़िल्म आई है 2004 में। श्याम बेनेगल साहब ने उस फ़िल्म को बनाया है क्योंकि वो खुद एक अच्छे फ़िल्म मेकर रहे हैं, संवेदनशील फ़िल्म मेकर रहे हैं और नेताजी के जो आखिरी 5 साल हैं, नाज़ी जर्मनी और जापानी सहयोग के माध्यम से जब आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना होती है और उस दौर को जब नेताजी जी रहे थे, उसको बताने का प्रयास नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो नाम की फ़िल्म में सैम बेनेगल साहब ने दिखाया है। वह फ़िल्म क्योंकि रियल फुटेज के आधार पर है, बहुत सारे रियल फुटेज भी उसमें शामिल हैं और जब उस फ़िल्म को मैं देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उन किरदारों को थोड़ा-सा आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वह दौर भी 2004 का जो दौर है, वह सिनेमा की दृष्टि से बहुत व्यावसायिक दौर हमें समझ में आता है। 2005 में एक फ़िल्म आती है मंगल पांडे, उसमें भी आप देखिए, उसमें भी 1857 की क्रांति है। क्रांति का जो बिंदु है वो प्रतिरोध का बिंदु है। प्रतिरोध तो दिखाया गया है लेकिन उसमें भी बहुत ग्लोरिफ़िकेशन है। अच्छी बात ये है कि फ़िल्में बनी हैं, फ़िल्में बननी चाहिए, लेकिन हमें जो किताबों से पता चला है, जो हमें रेफ़रेंसेस से पता चला है, उनमें हम कहीं बहुत दूर हो जा रहे हैं। उनके साथ में जो हमारा टाई अप है, पहले से भी होता रहा है, आज तो मैं अगर आज के दौर पर आता हूँ, 2019 में एक फ़िल्म आती है मणिकर्णिका, उसमें देखिए कि है तो वो आज़ाद भारत की कहानी, कि कैसे झाँसी की रानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल लड़ा। लेकिन वो फ़िल्म 57 की क्रांति के बाद कैसे बदलता है सिनेरियो, उसकी फ़िल्म है। लेकिन आपने भी देखी होगी और हम सब ने देखी है, उस फ़िल्म में क्या है, कैसे है, हम सबको पता है। उस पर मैं क्योंकि हम लोग इस आभासी मंच पर हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। एक फ़िल्म आती है 2021 में सरदार उधम, सुजीत सरकार की ये फ़िल्म है, विक्की कौशल उसमें उधम सिंह का किरदार कर रहे हैं। आप ये समझिए कि उस फ़िल्म में उधम सिंह के उस जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो बदला लेने की कहानी उधम सिंह की हम सब ने सुन रखी है, वही दिखाई देता है। उधम सिंह को हम और समझना चाहें, तो हम कहाँ जाएँ? एज़ अ फ़िल्म क्रिटिक, एज़ अ फ़िल्म व्यूअर हमें कहाँ और दिख सकता है, ये शायद हमें पता नहीं है। फिर भी हम उस फ़िल्म को हमें देखा जाना चाहिए। 2024 में एक और फ़िल्म आती है, स्वतंत्र वीर सावरकर। रणदीप हुड्डा ने जब हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका भी नाम शामिल है और हम इन्हें किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। सावरकर की क्रांतिकारी यात्रा और विचारधारा पर यह उनकी जीवनी है, इसको आपको देखा जाना चाहिए कि ये फ़िल्म में किस तरीके से पेश किया गया है। अब छोटी-छोटी बातें जो आज़ादी और उसके रेफ़रेंसेस को जोड़ कर के बनाई गई, उसमें एक और फ़िल्म है लगान। लगान में भी आज़ादी का संघर्ष नहीं है, लेकिन किस तरीके से एक रेफ़रेंस दिए गए हैं, वह भी आपको देखा जाना चाहिए। देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रंग दे बसंती एक फ़िल्म है 2006 में आती है, उसमें भी राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने ब्रिटिश छात्रा द्वारा जो भारतीय क्रांतिकारी हैं, उन 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 पर किस तरीके से एक देशभक्ति भरी जा रही है, उसको दिखाने की वो फ़िल्म है। उसको वो पेश करने का प्रयास करते हैं। आज के समय में जब हम आते हैं, तो हमने देखा पिछले साल कन्ना नैयर की जो फ़िल्म ऐ वतन मेरे वतन की बात हुई, वो आती है। इसके अलावा बहुत कम फ़िल्में हैं इस पब्लिक डोमेन में, जो आज़ादी के संघर्ष को सीधे-सीधे जोड़ने का प्रयास करती हैं। गाने के नाम पर हमारे पास में वही 8-10 गाने हैं, जो हम हर बार 15 अगस्त में, 26 जनवरी में सुनते हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन वही कमाल करने वाले लोग, वही गोवा की आज़ादी को गोवा को आज़ाद कराने वाले डॉक्टर लोहिया पर एक फ़िल्म इस देश ने नहीं बनाई। बहुत दुःख होता है कि जिस गोवा की आज़ादी के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सीधे कहाँ से कहाँ तक उन्होंने संघर्ष किया, संग्राम किया और वही गोवा जहाँ पर हर साल फ़िल्म फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल होता है, उनके नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रखा गया, कोई एक फ़िल्म नहीं बनाई गई, कोई एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई गई। तब मैं मुझे लगता है कि हम जैसे युवाओं को
इस पर लिखना, बोलना, समझना जरूर चाहिए कि हम सिनेमा में देखना क्या चाहते हैं। दर्शक की जिम्मेदारी है सिनेमा को बनाना, सिनेमा कैसा हो, या प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि फिल्में कैसी बने, हमारा समाज फिल्मों के जरिए कैसे बदले, कैसे उसे बदलना चाहिए। यह सवाल बहुत जरूरी है और हम सबको मिलकर उठाए जाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपके सवाल होंगे तो मैं उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनीष जी। आपने बहुत विस्तार से पूरा एक जो ऐतिहासिक क्रम था फिल्मों का, किस दौर में कौन सी फिल्म आई और किस तरह से उन गीतों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। जैसा आपने भी कहा कि ये बहुत मुश्किल है इतिहास के साथ पूरा मुझे लगता है सिनेमा इतिहास की पुस्तक नहीं है। वो एक तरह से दर्शकों को उन क्षणों में ले जाना चाहता है। जैसे गांधी की बात अपन ने की, गांधी फिल्म की, रिचर्ड एटनबरो की। उसमें अब आप सोचिए, गांधी का जो इतना लंबा 60 70 80 साल का उनका जो आंदोलन था स्वाधीनता के लिए, कितने लोगों से मिले, कितनों से विवाद हुए होंगे, लेकिन उस सब में चूंकि गांधी के चरित्र को उजागर करना था, कुछ घटनाएं उन्होंने ली, जैसे असहयोग आंदोलन, है ना। अब उसको जिस तरह से दिखाया, या आप कल्पना कीजिए जब गांधी को पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतार दिया, अब उस घटना का जिस तरह से चित्रण किया, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दर्शक पर एक छाप छोड़ता है कि गांधी के साथ कैसे वो अत्याचार हुआ, और वहां से गांधी की तैयारी होती है और गांधी बनता है। तो चूंकि हमें इतिहास को, इतिहास की पुस्तकों में हम जो पढ़ते हैं वो का वो शायद फिल्मों में, आप उसके शोधार्थी हैं और विद्यार्थी है सिनेमा के, तो शायद ज्यादा उसको समझा पाए, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास, ये जो फिल्में हैं, ये इतिहास की एक खिड़की खोलते हैं हमारे सामने। और एक फिल्म के स्टूडेंट के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों को, फिल्म के विद्यार्थियों को ये समझाना पड़ेगा कि कैसे आप उसको लॉजिकली समझ पाए। ये यहाँ, या इसको यूं कहूं मैं कि शायद ये भी मीडिया लिटरेसी का एक दूसरा रूप है कि आप उन फिल्मों के माध्यम से विद्यार्थियों को हमारी उस परंपरा से कहीं ना कहीं समझाएं और विद्यार्थियों को बताएं कि उस निर्देशक ने, प्रोड्यूसर ने या स्क्रिप्ट राइटर ने कौन सी चीजों को छोड़ा है और कौन सी चीजों को उसने लिया है। ये क्षमता शायद हमें विकसित करनी पड़ेगी। फिल्में निश्चित रूप से प्रामाणिक इतिहास नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी रूप से इतिहास को जिंदा रखती है। मुझे आपको सुनकर के महसूस हुआ कि ये तो सही है कि वो प्रामाणिक इतिहास नहीं है। आपने भगत सिंह के फिल्म की बात कही, बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई। बल्कि कई बार गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि यदि गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से छुड़वा सकते थे। तो ये जो विवाद है, अब ये किस तरह से फिल्म में दिखाए जाएंगे? फिल्म नई कंट्रोवर्सी पैदा करेगी, या उसका जो एक पक्ष है, भगत सिंह को एक क्रांतिकारी के रूप में, एक सोशलिस्ट मूवमेंट के प्रणेता के रूप में दिखाया जाएगा, वो महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है हमें एक बहुत व्यापक रूप में इन चीजों को सोचना पड़ेगा। मैं तो इस रूप में लेता हूं कि ये फिल्में एक ऐतिहासिक समझ पैदा करती हैं, और उसमें जो संदेश दिया गया है, शायद हम उन संदेशों को समझने का प्रयास करें। जब रघुपति राघव राजा राम या उसके धुन उस दौर की बजाई जाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उस दौर में कहीं खो जाते हैं। तो वो जो फील है, मैं अभी कुछ कुछ वर्षों पहले गुजरात विद्यापीठ गया था। मुझे पता नहीं इस समय की क्या स्थिति है। भाई मितेश मोदी हमारे साथ हैं, शायद उन्होंने देखा हो। जब मैं वहां, सुबह का जो समय था और विद्यार्थियों को संबोधित करना था, प्रोफेसर सुदर्शन अयंगर उस समय कुलपति थे, और वो दृश्य अभी तक मुझे याद है। वहां विद्यार्थी जब सुबह का व्याख्यान होता था, किसी भी वक्ता को बुलाते थे, तो व्याख्यान के समय वो चरखा काटते थे। अब शुरू में तो मुझे अटपटा लगा कि मैं तो बात कर रहा हूं और सब चरखा काट रहे हैं। लेकिन कुलपति ने कहा कि साहब, इनको ट्रेनिंग इस तरह की दी गई है कि ये चरखा काटते हुए भी आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे जो पर्सनली जो मैंने गेन किया, कि जब मैं वो चरखा काटते हुए वहां उन छात्रों के उस ग्रुप को देखता हूँ, 400 500 600 छात्र बैठे हुए हैं, छात्राएं बैठी हुई हैं, मुझे तो वो स्वाधीनता का, वो गांधी का वो आह्वान याद आता है कि चरखा काटते हुए कैसे अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी थी।
चरखाई तो काट रहे थे, कोई गोली बंदूक तो हाथ में थे नहीं उनके। वो एक पूरा पूरा दृश्य आंखों के सामने घूमता है। शायद फिल्मों का यही चमत्कार है कि वो उन कुछ कथानकों को आधार बना करके किस तरह से आपको उस अतीत के साथ जोड़ता है और भविष्य के लिए कहीं आपको कुछ संदेश देना चाहता है। दो मुद्दे हैं, फिल्म में क्या दिखाया जाए, जैसा है वास्तव में वो दिखाया जाए, या जैसा दर्शक देखना चाहता है वैसा दिखाया जाए। ये मुझे लगता है कि एक प्रोड्यूसर के सामने मुख्य चुनौती है, और उसका शायद उद्देश्य तो निश्चित रूप से यही होगा कि हम देशभक्ति की भावना का संचार कर सकें। जिन गीतों की आपने बात कही, उपकार फिल्म, जब वो दृश्य आता है कि रंग है लाल बहादुर के, क्या है ना वो, जिसमें शास्त्री जी आते हैं और वो नमस्कार करते हुए, मुझे अभी भी याद है, हम बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठता है शास्त्री जी को देख करके। तो ये जो राज हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा भाव और प्रकारांतर से वो जो भावना का संचार होता है। और मनोज कुमार को तो आप भारत कुमार कहते ही हैं, किस तरह से उन्होंने उन फिल्मों के माध्यम से जन जागृति की बात की। तो बहुत सारे इस तरह के गीत हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इन विषयों के माध्यम से कहीं हमें सोचने के लिए विवश किया और हमारे उस विचार तंत्रा को कहीं झकझोरने का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार आपका। इसके पूर्व कि अपन प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू करें, मैं एक बार फिर जयंत राठी जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस दिवस की याद में एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भाई मनीष जैसल को भेंट करें, और हम उनको ये व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे। जयंत जी, जयंत जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर। हाँ हाँ, ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो। जी सर, मैं शेयर करूँ। जी सर मोमेंटो विजिबल है? नहीं, अभी नहीं आया। ये तो अभी ऑडियंस ही दिख रही है इसमें भी, हम खुद को दो जगह देख पा रहे हैं। एक सेकंड। कुछ तकनीकी चुनौतियां अक्सर हो जाती हैं। ये ई मेमेंटो, और अब ई सर्टिफिकेट, ये बुके आ गया। जी सर। बहुत धन्यवाद सर। नहीं, ई सर्टिफिकेट जैन जी अभी तक नहीं डिस्प्ले हुआ। यस। देखिए सर। जी जी, हो गया। ये मनीष जी, ये सर्टिफिकेट है आज के हमारे इस आयोजन की स्मृति स्वरूप, और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। और अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। हमारे जो भी मित्र अपनी कोई टिप्पणी करना चाहें, उनके कोई ऑब्जर्वेशंस हो, कोई सवाल हो, कोई अनुभव हो, वो अपना वीडियो ऑन करें। क्योंकि पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए हम अपेक्षा करेंगे कि आप अपनी रिकॉर्डिंग को ऑन करें, अपना परिचय दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कभी कोई देखे तो आपको पहचान सके कि आप कहाँ से हैं, किस विश्वविद्यालय से या संस्थान से आपका एफिलिएशन है। तो अपना परिचय देते हुए आप अपनी बात कहें। जी सर नमस्कार। हाँ सूरज जी, मैं नमस्कार। प्रसाद, वर्तमान में विद्या पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में। सर जब हम अपने बचपन को याद करते हैं, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के जब आयोजन हुआ करते थे, निश्चित रूप से हम बच्चों में सर एक बहुत उत्साह हुआ करता था। और जब जहाँ पे झंडा फहराया जाता था, वहाँ जो गीत बजते थे, उन गीतों को मतलब जैसे कि लगता था कि हम उस गीत को जी रहे हैं। और सर जो सिनेमा है, मनीष सर से इसी संदर्भ में एक मैं पूछना चाहूँगा कि जो कथानक है या कोई पात्र है, उसको कितना सिनेमा में उतार पाती रहती है डायरेक्टर के सामने में और प्रोड्यूसर के सामने होती है कि कैसे फिल्म को बेचा जाए।
ताकि मुनाफा उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कि सर जो सिनेमा वो सिनेमा का या आम जनता पे जो प्रभाव है वो किस तरह से पड़ता है। मुझे कई बार लगता है फिल्म देखते हुए कि जो है हम दुनिया बदल देंगे और वाकई में एक आदर्श समाज की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे ही हम सिनेमा से बाहर आते हैं और इस दुनिया में आते हैं तो लगता है कि जैसे शमशान घाट का जो दर्शन होता है कि जब हम वहां जाते हैं तो लगता है कि दुनिया क्षणभंगुर है, क्या रखा है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, लेकिन वहां से बाहर निकलते ही सारा मोह भंग हो जाता है, हम अपनी दुनिया में आ जाते हैं। तो सिनेमा के साथ भी क्या ऐसा है कि जब हम देखते हैं तो हम देशभक्ति और तमाम वैसी चीजों से ओतप्रोत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिर व्यवहारिक जीवन में जाते हैं तो फिर वहां फिर अपने ही लोगों के को छलना, उनके साथ धोखा करना, उनके साथ तमाम दूसरी चीजें करना। तो इसको थोड़ा सा जो सिनेमा का इम्पैक्ट है जो भारतीय दर्शकों पे, उसको थोड़ा सा सर क्लियर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है सर आपका। मुझे जो जो मैं बात कह रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं अगर मानूं तो सिनेमा का जो असर है, या मैं कहूँ कि ऑडियो विजुअल का जो असर है, वो सोसाइटी पर बहुत होता है और उसका जी सर। इम्पैक्ट है। अगर अच्छा ऑडियो विजुअल है और अच्छा सिनेमा है तो आज हम लगान के एक एक दृश्य को याद कर सकते हैं। हमें पता जी है, सर। हमें हमें जो है उमराव जान फिल्म आज भी याद है, हमें मुजफ्फर अली की गमन याद है, और हमें उसकी रोटी मनी कौल की याद रहती है। हमें अंकुर जी निशान मंथन के वो बहुत सारे दृश्य याद हैं। इसलिए याद हैं क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमें बहुत ज्यादा है, हमने उससे गहराई से हम उससे जुड़े हैं। अब हो क्या रहा है, भारत सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश बन चुका है। अब जी वो फिल्में प्रोडक्शन हो रही हैं, और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तब कंटेंट कैसा है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जी और प्रोड्यूसर, वही प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर अपनी भूमिका में आज हैं वो प्रोड्यूसर दूसरी भूमिका में जाकर के कैसे बदल जाते हैं। एक एग्जांपल से मैं बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि ये सब ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रहलाद निहलानी जैसे बड़े प्रोड्यूसर से इंटरव्यू मैंने किया है, मुझे पता है। वो जब सेंसर बोर्ड के चीफ होते हैं तब वो चीजें काटते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इससे सोसाइटी गड़बड़ हो जाएगी, सोसाइटी में हाँ भेदभाव हो जाएगा, सोसाइटी में ये इसका खराब मैसेज जाएगा। लेकिन उसी संस्था के क्रियाकलाप में या उसके पूरे चरणों में संकट है। उसमें फिल्म को समझने वाला एक व्यक्ति नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी फिल्म को मैंने बनाया एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, मैंने उसे प्रोड्यूस किया। अब मैंने फिल्म सेंसर बोर्ड को भेजी, तो सेंसर बोर्ड ने उसको इस हिसाब से काट दिया कि ये फिल्म समाज में दिक्कत पैदा करेगी, जबकि उसमें जी कोई ऐसा पैनल मेंबर ही नहीं है जो उससे जुड़ा हुआ हो। अब ऐसे में ऐसी फिल्में जाएंगी मार्केट में तो उससे क्या होगा वो पता चलेगा, लेकिन उसका नुकसान होता है लोगों को। अब जब से आपके सवाल में मैं एक चीज और ऐड करके इसका जवाब कंक्लूड करूं कि अब जब कंटेंट ही किंग बचा है, आप देखिए हमारे सामने से निकल के सामने से बहुत सारी चीजें चली जाती हैं। 10,000 रोज पाने वाले एक्टर पंचायत में काम कर रहे हैं, 10,000 रुपए रोज पा रहे हैं। उनका अगर मंथली इनकम शो की देखिए, मैं ऐसे पंचायत सीरीज के कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10,000 पर डे में कर रहे थे। 40 दिन का शूट हुआ और 40,000, इतना जो पैसा पा रहे थे इतना ही पा रहे थे बस वो। लेकिन कंटेंट किंग था वहां पर। तो कंटेंट का असर जीवन भर रहेगा, और आज नहीं हो रहा है उसका असर, तो जब आपकी नजर में पड़ेगा तब आपके सामने होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार उत्तर है सर। अच्छा, हाँ साहब, और कोई मित्र? कोई सवाल नहीं, कोई टिप्पणी नहीं? मिठेश जी बता रहे थे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के मन में कोई सवाल हो, ऐतिहासिक फिल्में देखी हो? चलिए, कोई सवाल नहीं है तो अपन अब इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। जयंत जी, आप देंगे वोट ऑफ थैंक्स? जयंत जी। सर आप कंटिन्यू करिए प्लीज। अच्छा अच्छा, चलिए, जयसिल जी ने जिस तरह का अपना पूरा वक्तव्य दिया शोध आधारित, तो हम इनके आभारी हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने
ऐतिहासिक उद्धरणों के साथ साथ कुछ वैचारिक दृष्टि से हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाला जो आपका डेलिब्रेशंस था वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ दोनों संस्थानों की ओर से। मैं आभारी हूं हमारी पूरी टेक्निकल टीम का, जयंत राठी जी, पुष्पेंद्र जी और प्रियंका सिंह। संयोग से आज हमारे बीच में नहीं है, यात्रा में है, लेकिन आप सभी का, आप तीनों का विशेषकर मुझे सहयोग रहता है इस पूरे आयोजन को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए। स्क्रीन पे और स्क्रीन के पीछे उन सारे कार्यों को पूरी क्षमता और दक्षता के साथ संयोजित करने के लिए मैं इनका भी आभारी हूँ। प्रोफेसर एम.एन. हुडा, उनके अनुपस्थिति में उनके प्रति आभार इसलिए कि लगभग 2 वर्ष पूर्व जब एक आयोजन में मैं सम्मिलित हुआ तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम क्यों नहीं दोनों मिलकर के इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने जिस तरह से अपने कॉलेज के संसाधनों को हमारे साथ जोड़ते हुए बिना किसी हस्तक्षेप के, किसको बुलाना है, कब बुलाना है, किसी तरह का, जब आपकी इच्छा हो, जिस समय आपकी इच्छा हो। कई बार एक्सपर्ट की समय की प्रतिकूलता के कारण हमने दिन में भी किया है आयोजन, तो सभी तरह से आपने अपनी पूरी टीम को इसके लिए सहर्ष अनुमति दी। मैं उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। और एक सूचना कि हमारी अगली जो वेबिनार है 175वीं, वो विश्व फोटोग्राफी दिवस पर है, जैसा मैंने शुरू में कहा, और रोल ऑफ फोटोग्राफी इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि एआई का और इसका क्या इम्पैक्ट आजकल आ रहा है फोटोग्राफी पे, उस पर बात करें। और हमारे साथ 2 प्रबुद्ध फोटोग्राफर्स हैं, अब दोनों ही हमारे बहुत आत्मीय हैं और मीडिया के साथ जुड़े रहे। एक है महेश स्वामी, जो अब तक करीब 22 एग्जीबिशंस लगा चुके हैं, और अभी उनकी अगली एग्जीबिशन 18 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस से एक दिन पूर्व वो लगा रहे हैं जयपुर में जवाहर कला केंद्र में। बहुत सारी लगाई, उसकी बात विस्तार से उस समय करेंगे। और MNIT हमारे यहाँ का जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ वो विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरे हैं राकेश शर्मा राजदीप, जो बरसों तक जयपुर में रहे राजस्थान पत्रिका के प्रेस फोटोग्राफर के रूप में, और अभी वो उदयपुर में है। पत्रिका से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पंजाब केसरी में सीनियर फोटोग्राफर और न्यूज एडिटर के रूप में अभी ज्वाइन किया है, तो वो उदयपुर में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों मित्र फोटोग्राफी की इस आज की दुनिया के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। समय वही शाम को 5:30 बजे, जैसा हमारा अब तक का परंपरा है, और लिंक वही जिस पर आप हर बार ज्वाइन करते हैं। आपसे अनुरोध कि आप विश्व फोटोग्राफी दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ 19 अगस्त शाम को 5:30 बजे इसी मंच पर मिलें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपने देश के लिए जिस तरह से आज का जो संदेश भाई मनीष जैसल ने भी दिया कि क्रांतिकारियों ने जो कुर्बानी दी, उत्सर्ग दिया, अपने परिवार को, अपने स्वयं को उस आजादी की अग्नि में एक तरह से झोंक दिया, उन बलिदानों को याद करते हुए हम भी देश के प्रति, अधिकारों की बात तो हम सब करते ही हैं, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में, आप देख रहे हैं आसपास कितनी चुनौतियां हमारे सामने हैं, कितने देश हमारी ओर आंख गड़ाए बैठे हैं। तो उस सारी चुनौतियों के बीच में, स्थानीय समस्याओं के बीच, हम इस देश को खुशहाल भारत बनाने की दिशा में अपना पूरी प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ काम करें। इन्हीं भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। और जो मित्र जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है वो तो फ्री हैं, और जिन्होंने जनरेट नहीं किया है अभी 10 मिनट तक ये विंडो खुली रहेगी। और भाई जयंत जी उनके साथ हैं, कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो वो देख लें। और फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप सर्टिफिकेट जनरेट करने के बाद ही लीव करें। बाद में सर्टिफिकेट जनरेट करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, दिक्कत आती है। ये इंस्टेंट जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप जयंत जी के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना सर्टिफिकेट अपने ईमेल पे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।